class power sharing. Now, what do you mean by the term power sharing? What is power? What is power sharing? Power, something you all are very much aware about this term power. मतलब कि एक ऐसी चीज, एक authority, like you have authority to something, ठीक है, it's power, and we have to share this authority. While taking any decision, we have to share this authority in politics. So, and why it is important to have why it is important to share the powers. Okay, so as you all know, we talk about democracy like last year. We read about democracy and what is the importance of democracy. We read everything about democracy in our in last class. In last class. In last class 9th. Okay, so we noted that in democracy all power does not rest with any one organ of the government. Like there are three organs of the government: legislature, executive, and judiciary. So all the powers not rest with any one organ of the government. They all have like different powers with them, right? Like for example, like mm, sharing of, like this intelligently sharing of power is like very important for a democratic country. Okay, so we will start with why it is important to share power. Why, what is the need, what is the huge need for sharing power. We will start and we will understood this concept with the help of two stories, a story of Belgium and story of Sri Lanka. We will start. Okay, so now first of all Belgium. Now first of all Belgium is a very small country. Okay, so it is a very small country in Europe and इसका जो एरिया है हरियाणा, हमारा जो हरियाणा है स्टेट, उससे भी काफी छोटा, लाइक यू कैन से उससे भी छोटा एरिया है. It has borders with France, Netherlands and Germany. फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. ये चार जो कंट्रीज है इससे ये इसका बॉर्डर जो है टच कर रहा है फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट लाइक 1 करोड़ के अराउंड है. ठीक है, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन. हरियाणा की पॉपुलेशन से भी लाइक आधी पॉपुलेशन है यहाँ पे. ओके, सो it has a population of around 1 crore. The ethnic composition of this small country is very complex. Now there is a term called ethnic. What do you mean by the term ethnic and what is the meaning of ethnic? Ethnic means a social division based on shared culture. A social division based on shared culture. People belonging to the same group believe in their common descent because of similarities of physical type or of cultural or both. They need not always have the same religion or nationality. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अगर आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाते हो एंड इफ यू फाइंड एनी नॉर्थ इंडियन देयर. ठीक है, कोई आप अकेले जा रहे हो, ठीक है, वहां पे सब साउथ इंडियंस हैं. आपको नहीं पता कि लाइक वहाँ की लैंग्वेज क्या है और आप एक कॉमन, आप बहुत सारे रिलीजन भी आप कॉमनली सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो. तो आपको कहीं ना कहीं से वो क्या लगेगा, एक ना थोड़ा सा लगेगा कि डिफरेंस लगेगा कि हम सिमिलर नहीं है. बट वहां पे कहीं पे आपको एक नॉर्थ इंडियन मिल जाए, ठीक है, चाहे आप कहाँ से, राजस्थान से बिलोंग कर रहे हो और चाहे वो जो पर्सन है जो आपको मिला है वो यूपी से बिलोंग करता हो, ठीक है, बट यू फील कनेक्टेड बाय आपकी जो लैंग्वेज है समहाउ सिमिलर है, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर समहाउ सिमिलर है, आपके लुक्स काइंड ऑफ जो लुक्स है, कलर है, ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर है,
कल्चर है, कहीं ना कहीं क्या करता है, मिलता है, ठीक है, सिमिलैरिटीज है, ठीक है। सो जस्ट लाइक आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ इंडियन के नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का, जस्ट लाइक दैट अगर आप इंडिया से बाहर कहीं रहते हो, ठीक है, और वहां पे आपको अगर कोई ग्रुप मिल जाता है जो अ, अ, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, ठीक है, बंगालीज हैं, और आप क्या हो, मराठी, यू फील कनेक्टेड, ये आपको वहां पे लगेगा कि हाँ हम एक ही नेशन से हैं, ठीक है, हम एक ही नेशन से हैं, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, राइट। तो आपको लगेगा हम क्या हैं, हम ब्रदर्स हैं, ठीक है, एक कॉमन यूनिटी फील करोगे। तो जस्ट लाइक दैट ये जो इसका मीनिंग होता है एथनिक, ठीक है, एक सोशल डिविजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर। हो सकता है आपके लैंग्वेज के बेसिस पे आप सेम हो, कल्चर के बेसिस पे सेम हो, या फिर रिलीजन के बेसिस पे हो, और कोई जरूरी नहीं है कि आप इन सब के जैसे कि आप हिंदी बोल रहे हो तो सामने वाला भी हिंदी बोल रहा है, कोई जरूरी नहीं, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, बट आप कितने कनेक्टेड हो आपस में, ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एथनिक बोलते हैं। उनका जो है समथिंग कॉमन एंसेस्टर्स जो है, कहीं ना कहीं कॉमन डेसेंट है, उनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं, ओके। सो ये जो बेल्जियम है, यहाँ का जो आप बोल सकते हो जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region. Now just look at the map given in your book. Now just look at this map. This is the map of Belgium. जो आप ये येलो एरिया देख रहे हो, दिस इज फ्लेमिश रीजन, एंड ये जो रेड ऑरेंज वाला जो एरिया देख रहे हो, रेडिश ऑरेंज जो एरिया देख रहे हो, दिस इज वलूनिया रीजन, ठीक है। अब ये जो फ्लेमिश रीजन है, फ्लेमिश रीजन में 59% जो पॉपुलेशन जो है वो रहती है, और क्या कौन सी लैंग्वेज बोलती है, दे स्पीक डच लैंग्वेज। 59% population live here and they speak डच लैंग्वेज, ओके। और ये जो आपका वलोनिया रीजन है, यहाँ पे 40% लोग रहते हैं, और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ये बोलते हैं फ्रेंच, ओके। और जो 1% है वो आप बोल सकते हो कि एक जर्मन स्पीकिंग का है, ये वाला जो एरिया देख रहे हो, जर्मन स्पीकिंग है ये वाला, ओके। सो यस अनिकेत, आई विल टेक योर डाउट लेटर ऑन, लास्ट 10 मिनट्स में हम डाउट्स लेंगे। सो वी विल डिस्कस ये जो सॉरी जो बाकी का 1% है वो क्या है, वो आप बोल सकते हो कि जर्मन स्पीकिंग है, और वो इस एरिया में रहते हैं, ठीक है। सो 59% पॉपुलेशन lives in Flemish region. This is the yellow portion and this is known as the Flemish region. ये वाला जो एरिया है आपका वलोनिया रीजन है, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 40% पॉपुलेशन रहती है, और यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और ये जो 1% पॉपुलेशन है वो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, ओके। बट नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ब्रुसेल्स। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ब्रुसेल्स। ये जो ये ऑरेंज एरिया देख रहे हो, ये कैपिटल रीजन है। यहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन रहती है उसमें से 80% जो पॉपुलेशन है वो कौन सी लैंग्वेज बोल रही है, वो बोल रही है फ्रेंच, ठीक है। आई एम राइटिंग F फॉर फ्रेंच एंड D फॉर डच, ठीक है। और जो 20% पॉपुलेशन रह रही है वो कौन सी लैंग्वेज बोल रही है, वो बोल रही है डच लैंग्वेज। अब डिफरेंस देख रहे हो, ऑल ओवर द कंट्री व्हाट इज हैपनिंग हियर, ऑल ओवर द कंट्री अगर हम मेजोरिटी देखें तो ऑब्वियसली इनकी है 59% डच स्पीकर्स की है, ठीक है। और माइनॉरिटी जर्मन्स को पुट असाइड, जर्मन्स, ठीक है, जर्मन्स को एक बार छोड़ दो, जो 40% है वो कौन सी है, माइनॉरिटी है, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। बट इफ यू टॉक अबाउट द कैपिटल सिटी, यहाँ पे मेजोरिटी में कौन है,
फ्रेंच स्पीकर्स हैं, क्योंकि 80% पॉपुलेशन ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलते हैं और ओनली 20% पॉपुलेशन जो है डच स्पीकर्स हैं। ठीक है, तो अब देखो, और एक कंट्री की अगर कैपिटल है, तो एक कंट्री की कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होती है, बिकॉज जितनी भी आपकी रिजाइन होती है, जो भी गवर्नमेंट होती है, वो ऑल ओवर वर्क कहाँ से करता है, कैपिटल से करता है मोस्टली। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल जो है न्यू दिल्ली है। अब न्यू दिल्ली में जितने भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं, जितने भी हाउसेस हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बिल्डिंग्स हैं, वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है ना। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट आपके डिसीजन है वो कहाँ लिए जाते हैं। सो जस्ट लाइक दैट ब्रुसेल्स में भी यही हो रहा है। ठीक है, ब्रुसेल्स में बेल्जियम के जो डिसीजन है, बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है, वो मोस्टली कहाँ से वर्क कर रही है, वो ब्रुसेल से वर्क कर रही है। राइट, सो हमने देखा ऑल ओवर द कंट्री, कौन सी कंट्री है मेजोरिटी में, कौन से स्पीकर्स है मेजोरिटी में, डच स्पीकर्स हैं। ठीक है, और माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकर्स है। बट इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, मेजोरिटी में कौन है, फ्रेंच स्पीकर्स हैं, और माइनॉरिटी में कौन है, डच स्पीकर्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। नाउ जस्ट लुक एट दिस, the minority French speaking community was relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development एंड एजुकेशन मच लेटर। ठीक है, जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो एज कंपेयर टू डच स्पीकर्स या डच स्पीकिंग कम्युनिटी बहुत रिच और बहुत पावरफुल है, और डच स्पीकिंग को जो एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई थी वो बहुत बाद में हुई थी डच स्पीकिंग की। तो इस वजह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी नहीं थी डच स्पीकर्स के लिए कंपेयर टू फ्रेंच स्पीकर्स। ठीक है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं थी। तो इस वजह से क्या हुआ, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज में टेंशंस अराइज हो गए थे 1950s और 1960s के टाइम पे। टेंशंस अराइज हो गए थे। ठीक है, एंड द टेंशंस बिटवीन द टू communities was more acute in Brussels. Obviously Brussels जो है कैपिटल सिटी है, और वहां पे मेजोरिटी में फ्रेंच है, और वहीं से सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। दैट्स व्हाई वहां पे जो टेंशंस थे ब्रुसेल्स में, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एक्यूट थे, बहुत ज्यादा एक्टिव थे। ठीक है, Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital. ऑलरेडी टोल्ड यू, जो डच स्पीकर्स थे उनकी मेजोरिटी ऑल ओवर द कंट्री, उनकी वो मेजोरिटी में थे। ठीक है, बट अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें तो वो माइनॉरिटी में थे जो डच स्पीकर्स थे। ठीक है, अब आपको ब्रुसेल का एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ आ गया, वहां का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। Okay, so what you are supposed to do, you all are supposed to write the meaning of ethnic first. What is the meaning of ethnic? Now just look at this glossary term. You all are supposed to learn this glossary term. जितने भी glossary terms है उसे अच्छे से learn कर लेना। ठीक है, अब एथनिक कॉम्पोजिशन पूछा तो ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन लिखना स्टार्ट कर दो कि एक बेल्जियम एक छोटी कंट्री है और ऐसे से। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ऑल आर सपोज टू राइट द मीनिंग ऑफ एथनिक, बिकॉज द मेन क्वेश्चन हियर इज एथनिक कॉम्पोजिशन। आपको एथनिक टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट बेल्जियम की बेल्जियम क्या है, एक छोटी सी कंट्री है, उसकी बाउंड्रीज, ये बॉर्डर्स जो है फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से है, क्या है वो कनेक्ट है, उसके बॉर्डर्स हैं। फिर आप बताओगे कि कैसे, कितना कॉम्प्लेक्स क्यों है, मेजोरिटी में क्या है, फ्लेमिश रीजन, वलोनिया रीजन, और ब्रुसेल्स में उनका कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, तो आप फिर उसके बाद बताओगे कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए, और ये आपका क्या हो जाएगा, एथनिक कॉम्पोजिशन हो जाएगा। राइट, नाउ
सेकेंड स्टोरी जो है आपका, इसी चीज को हम श्रीलंका के कंट्री से कंपेयर कर, श्रीलंका के एग्जांपल से, सिचुएशन से कंपेयर करते हैं। ऑब्वियसली ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same as in Haryana. Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are the Sinhala speakers, Tamil speakers. Okay, now before going to like further ethnic composition, just look at this map of the Sri Lanka. This is the map of the Sri Lanka. ओके बहुत छोटा सा एक कंट्री है, आइलैंड नेशन है, ठीक है। हरियाणा की पॉपुलेशन जितनी पॉपुलेशन होगी, डाइवर्स कल्चर है, यहाँ पे भी डाइवर्स कल्चर है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज में जो है अब वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो ग्रुप्स है वो डाइवर्स ग्रुप है। तो श्रीलंका में भी डाइवर्स ग्रुप्स रह रहे हैं, ठीक है। ये श्रीलंका का आपका ये बोल सकते हो कि मैप, समझ आया। अब वहां का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो कैसा है, जो मेजर सोशल ग्रुप है वो सिन्हाला स्पीकर्स है। 74% पॉपुलेशन, दिस येलो पोर्शन, ठीक है, ये येलो पोर्शन जो है सिन्हाला स्पीकर्स का है। सिन्हाला एक लैंग्वेज है, सिन्हाला, ठीक है। सिन्हाला स्पीकर्स हैं और वो 74% पॉपुलेशन जो श्रीलंका की है वो सिन्हालीज बोलती है, ठीक है। 18% पॉपुलेशन जो है वो क्या बोलती है, वो तमिल बोलती है। अब इस तमिल में श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स दोनों हैं। श्रीलंकन तमिल्स और यू कैन से जो नेटिव तमिल्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी है, 13% है। और जो टोटल और जो रेस्ट 5% है वो इंडियन तमिल्स की है, जो कॉलोनाइजेशन के टाइम पे श्रीलंका में ऐसा प्लांटेशन वर्कर्स आ गए थे जिनके फोर फादर्स वगैरह, और वो वहीं पे सेटल हो गए। तो 5% पॉपुलेशन जो है इंडियन तमिल्स की है। ओके, टोटल 18% तमिल्स रहते हैं। नेटिव तमिल्स जो है, नेटिव आप बोल सकते हो, या श्रीलंकन तमिल्स की पॉपुलेशन 13% है, और जो इंडियन तमिल्स हैं उनकी पॉपुलेशन 5% है, ठीक है। सो जो तमिल्स हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिन्हालास जो है वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, दे फॉलो बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धिस्ट हैं वो, दे फॉलो बुद्धिज्म। जो तमिल्स हैं वो दोनों ही, हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ही हैं। पूछ लिया जाता है रिलीजन के बारे में कि कौन सिन्हालीज जो है कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, तो जस्ट रिमेम्बर सिन्हालास जो हैं बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, और जो तमिल्स हैं वो दोनों ही, हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ही तमिल्स हैं, ठीक है। एंड अप्रोक्सीमेटली 7% जो क्रिश्चियंस हैं वहां पे, क्रिश्चियनिटी जो फॉलो करते हैं वो दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल एंड सिन्हाला, ठीक है। तो 7% पॉपुलेशन, और 1% जो है अदर ग्रुप्स हैं आपका, मान लीजिए, मतलब बहुत ही स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स हैं, तो उनको 1% को आप अदर मान लीजिए। तो एथनिक कॉम्पोजिशन समझ आया श्रीलंका का। सिन्हालास जो है 74% है, एक बार मैप में देख लेते हैं। ये देखो, ये जो येलो पोर्शन है यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स रह रहे हैं, और इनकी पॉपुलेशन, इनकी परसेंटेज कितनी है, 74% पॉपुलेशन है इनकी, 74% है सिन्हाला स्पीकर्स की। और कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं ये लोग, ये फॉलो कर रहे हैं बुद्धिज्म को, ठीक है, दे आर बुद्धिस्ट। नाउ ये जो आप लाइट ऑरेंज शेड देख रहे हो, ये वाला एरिया जो ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका का एरिया है, और कोलंबो के पास ये जो थोड़ा बहुत ये वाला जो एरिया है वेस्ट में, साउथ वेस्ट श्रीलंका में, यहाँ पे कौन रह रहे हैं, श्रीलंकन तमिल्स रह रहे हैं। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ श्रीलंका एंड तमिल श्रीलंका एंड लाइक सम पार्ट्स ऑफ लाइक वेस्टर्न श्रीलंका, यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स रह रहे हैं। और जो ये डार्क ब्राउन कलर का देख रहे हो, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, ये इंडियन तमिल्स की पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है। देखो कैसे सेग्रीगेटेड से हैं ये इंडियन तमिल्स, राइट। और मुस्लिम्स जो है, ये जो वो भी सेग्रीगेटेड से हैं। ये जो एक आप ब्राउन ब्राउन ऐसे सर्कल में एक वो देख रहे हो, स्पॉट देख रहे हो, ये मुस्लिम्स की है।
74% Sinhalese who follow Buddhism, 18% Tamils who follow like some of them are like Hindus and some of them are Muslim, and 7% population are Christians who speak both Tamils and Sinhalas. Okay, so this is the ethnic composition of Sri Lanka. So we now just look at this. Now, just imagine what could happen in situation like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. This would push the conflict among the communities further. This could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. In Sri Lanka, Sinhala community enjoyed a bigger majority and could impose its will on the entire country. ठीक है, अब हम दोनों का ही पढ़ेंगे. बेल्जियम ने क्या किया, श्रीलंका ने क्या किया, इसके बाद इनका जो एथनिक कॉम्पोजिशन था. ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों ही कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो अराइज हो गए थे. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बेल्जियम में अगर डच कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी, वो अकॉर्डिंग सब पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दे. फ्रेंच स्पीकर्स और जर्मन स्पीकर्स को डिस्क्रिमिनेट कर. श्रीलंका में 74% पॉपुलेशन जो है सिन्हालास है, तो उनके वजह से क्या होता. ठीक है, वो अगर बिगर मेजॉरिटी में और अपने विल के अकॉर्डिंग वो काम करती, तो उससे क्या प्रॉब्लम अराइज होती. वी विल टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीज सिचुएशंस कि उन्होंने क्या किया अपने वॉर को, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सही करने में, और जिसने मेजॉरिटी में अगर मेजॉरिटी में है और अपने विल को इम्पोज किया है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, और बेल्जियम ने जो है एक इसका सही सोल्यूशन निकाला कि नहीं, एक कम्युनिटी वाइज जो है हमारा एक इक्वालिटी होनी चाहिए काइंड ऑफ, तो उससे उनको काफी फायदा. So we will talk about this later on in our next class. Okay, so go through the topic. If you face any problem, do message me, call me, okay, or you can ask me in my next class too. Go through the topic first of all. So this is all about today. Thank you for joining the class, everybody.